देखिए ये हो गया रिलेटिव नंबर। अब आते हैं एक एक के बारे में, एक एक पॉइंट समझते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास इंसीजर। देखो इंसीजर सबसे आगे का, इट इज द एंटीरियर मोस्ट फिफ्थ। और अगर हम इसको देखें कि इसका मेन फंक्शन क्या है, तो इट इज ऑफ कटिंग। कटिंग में क्या कि जनरली आप देखोगे कि दोज एनिमल्स विच फीड ऑन ग्रेन्स, मतलब चावल, गेहूं, मकई, इन सब पर जो फीड करते हैं, तो वो उस ग्रेन को कट करके खाएंगे, कुतरना, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं कुतर कर खाना। तो वो हम लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर इट इज फॉर कटिंग, एंड दैट इज द रीजन इट इज मोस्ट डेवलप्ड इन केस ऑफ rodents। rodents मीन्स रैट एंड स्क्विरल। ये जो फैमिली है इसे हम लोग कहते हैं rodents। इन केस ऑफ rodents इट इज मोस्ट डेवलप्ड, क्योंकि उस केस में वो ग्रेन पे फीड कर रहा है, तो ग्रेन को कुतर कर खाना है कट करके। तो रैट में और स्क्विरल में हम लोग देखेंगे कि इंसीजर इज मोस्ट डेवलप्ड। So which type of teeth is more developed? That depends on the type of food on which it is feeding। तो इसीलिए हम लोग यहाँ इंसीजर का मतलब हो गया शार्प एंड, इसका एंड हमेशा शार्प होगा, यूज टू कट मोस्ट डेवलप्ड in rodents as they feed on grains। as they feed on grains। The next is canine। देखो कैनाइन को अगर हम देखें तो इसका शेप ही होता है डैगर शेप। डैगर शेप मीन्स व्हाट? अच्छा अपसाइड। तो इस तरह से अगर हम देखें कि ये पॉइंटेड है, एंड है, डैगर शेप्ड है, तो इसे हम लोग ये है कैनाइन। एंड इट्स वर्क इज टीयरिंग, है ना। जैसे हम लोग देखें तो दिस कैनाइन इज मोस्ट डेवलप्ड इन केस ऑफ कार्निवोर्स। as you take the example of lion and tiger, in that case it is most developed and it is used for tearing flesh। जब वो अपने when it do predation, after that it has to tear the body of that prey, so for tearing that food it is used, tearing the flesh, so we can call it canine। So it is most developed in case of these carnivorous animals। So dagger shaped, used to tear, most developed in carnivores। तो इंसीजर सबसे ज्यादा डेवलप्ड है rodents के केस में, और कैनाइन हम लोग देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड है कार्निवोर के केस में। तो अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरह के टीथ का हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे। Now we come to the third type, that is the premolar। प्रीमोलर एंड मोलर मैं दोनों एक साथ ही लिख रहा हूं, सेम है। Premolar and molar both have flat surface and it is used for grinding। ग्राइंड करने में यूज होता है।
तो इसीलिए हम लोग देखेंगे दोनों का सेम शेप और दोनों का सेम फंक्शन. As it is used in grinding, so it is most developed in case of herbivores. If you take the common example of cattle, if you take the example of cow, buffalo, in all these cases, premolars and molars are most developed, and it is used for grinding grasses. So in that case, if you see, in these herbivores, we find one more difference. The difference is that the specific point is that in these cases, canine is not required, because if an animal is feeding on grasses, then definitely this canine is not required. And that is the reason in case of herbivores, canine is absent. So if you will observe these animals, suppose it is having the incision, after that there is blank, and then there is presence of a premolar and molar. So after this incisor, we are finding this blank part. This blank part is called as diastema. It is the common question asked. What is diastema? In case of herbivores, canine is absent. So there is a small gap between incisor and premolar. There is a small gap between incisor and premolar, and this gap is called as diastema. It is characteristic of only herbivores. But if you see the carnivores, if you see the omnivores, in all these cases, it is present. The canine is present. One way I said that the food, किस तरह के फूड पर वो फीड करता है, ये डिफाइन करता है कि उसका डेंटिशन कैसा होगा. तो दूसरे तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि किसी एनिमल का डेंटिशन देखकर हम ये बता सकते हैं कि वो किस तरह के फूड पर फीड करता होगा. अगर हम लोग अपने बारे में देखें तो वी आर हैविंग कैनाइन. Canine is not absent in our case. Means by origin we are not herbivore, we are omnivore. हमारा जो बेसिक नेचर है वो ओमनीवोर का है. ये एवोल्यूशन में शो हो रहा है, क्योंकि अगर हम भी हर्बीवोर होते बाय नेचर, जैसे कई सारे लोग फूड हैबिट को लेकर बहुत तरह का डिस्कशन रहता है कि नहीं हम लोग बाय नेचर है, हम लोगों ने अभी रिसेंटली हम लोग खाना शुरू कर दिए हैं, ये और ऐसा है. अगर ऐसा होता, ये टीथ का डेवलपमेंट एवोल्यूशन है, ये हजारों हजार साल में चेंजेस होते हैं. तो हम लोगों के बॉडी में अगर ये टीथ है कैनाइन का प्रेजेंस, ये शो करता है कि वी आर नॉट हर्बीवोर, वी आर ओमनीवोर. तो यहाँ पर ये हम लोगों ने पहले टाइप टर्म को मैं यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ. डायस्टेमा इज a gap between incisor and premolar in case of herbivores. As canine is absent. देखिए, तो इस तरह से हम लोग टीथ का अभी रिलेटिव हम लोग नंबर समझे. अब हम लोगों को किसी एक टूथ के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने लेयर्स हैं, कहाँ पर किस तरह से ये बना हुआ है. तो नाउ वी कम टू स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप. सर डायस्टेमा एक बार फिर से बता देते हैं. डायस्टेमा टर्म हम लोग यूज करते हैं कि मान लो कोई भी एनिमल है जिसमें अगर हम देखें कि इंसीजर है लेकिन उसके बाद कैनाइन नहीं है, उसके बाद सीधा आ गया प्रीमोलर एंड मोलर, तो हम लोग उस गैप को कहेंगे डायस्टेमा. ये गैप हम लोगों को मेनली कैटल के केस में दिखता है, क्योंकि वो हर्बीवोर्स होते हैं और हर्बीवोर के केस में वहां पर कैनाइन की जरूरत ही नहीं है.
क्योंकि दे डोंट हैव टू टीयर एनीथिंग, दे हैव टू कट, सो दे हैव इंसीजर। जैसे आप किसी भी एनिमल को, बफेलो को अगर घास चरते हुए देख रहे होंगे, तो जिस समय वो घास चर रहा होता है, एट दैट टाइम इट इज यूजिंग ओनली इंसीजर। वहां पे सिर्फ इंसीजर का यूज करके वो ग्रासेस कट करता जाता है और उसको एनगल्फ करता रहता है। फिर देखते होंगे कि वो बफेलो फिर बाद में सब खाने के बाद फिर बैठा रहता है और अपना मुंह चलाता रहता है। तो उस समय ये सब पढ़ना भी है अभी आगे। तो उस समय वो क्या चेंज करता है, वो सिर्फ अपने प्री मोलर और मोलर का यूज करके अपने जो ग्रासेज है उसका ग्राइंडिंग करता है। लेकिन किसी भी केस में इसको चीर फाड़ फाड़ने का ऐसा कुछ काम तो करना ही नहीं है। दैट इज द रीजन हियर देयर इज नो कैनाइन, कैनाइन इज एब्सेंट। सर ह्यूमन में कुछ कुछ चीज तो थ्रू आउट द लाइफ भी मतलब टूटता नहीं है सर, तो उसको कम्प्लीटली डाइफायोडेंट बोल सकते हैं ह्यूमन को? ना, कभी नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए तो क्लियर है यहाँ पे जो टर्म लिखे, तो वहां पर जो मिल्क टीथ है ना, दैट मिल्क टीथ, और इसमें जो परमानेंट टीथ, दो टाइप में पढ़े ना, तो उसमें जो मिल्क टीथ है वो 20 जो है वो डाइफायोडोंट है, और इधर जो 12 है वो मोनोफायोडोंट है। ये क्वेश्चन ठीक पूछे हैं कि मान लीजिए अगर पूछा जाए क्या टोटल है, तो नहीं, यहाँ पर ह्यूमन के केस में डाइफायोडोंट कौन है, मिल्क टीथ। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग था, मैंने शायद लिख देना भी चाहिए था मुझे। तो डाइफायोडोंट कौन हो गया, सिर्फ मिल्क टीथ, वो ना बचपन में आया और फिर हम लोग देखे कि वो खत्म हुआ, लेकिन जो हम लोग को बाद में ही आया है वो थोड़ी फिर जा रहा है, यानी कि जो परमानेंट टीथ है वो तो मोनोफायोडोंट है। परमानेंट टीथ लाइफ में एक ही बार आता है, दो बार नहीं आता है। मतलब हमारे जो टोटल 32 में से 20 जो है वो डाइफायोडोंट है, और जो 12 है वो मोनोफायोडोंट है, एक ही बार लाइफ में आता है। इसको लिख लो। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। सर वहाँ परमानेंट 12 नहीं लिखे हैं? हाँ, अब फिर आप दूसरा क्वेश्चन पूछ दिए। अब इसने क्या मेरे से पूछा कि कौन है जो कि इसका सारे के सारे टीथ को डाइफायोडोंट बोलेंगे, तो मैंने कहा नहीं, जो मिल्क टीथ है उसको हम लोग बोलेंगे कि वो डाइफायोडोंट है, वो दो बार आता है। लेकिन जो परमानेंट टीथ है, जो बाद में जो 12 जो आया है, वो 12 तो सिर्फ यहाँ पर मोनोफायोडोंट है ना, ये ना बताया। ये थोड़ी मैंने बोला कि परमानेंट टीथ जो है वो 12 है, परमानेंट टीथ 32 तो पढ़ ही चुके हैं ना। उसमें से 12 जो है, 12 वो मोनोफायोडोंट है, और उसमें से जो 20 है वो यहाँ पर डाइफायोडोंट है। जो 20 है वही दो बार आ रहा है, और 12 एक ही बार आ रहा है। ठीक है, नहीं रिप्लाई किए? यस सर। और चेंज कुछ और नहीं ना है इसमें, और कोई डाउट रह गया? नो सर। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। किसी एक टूथ के स्ट्रक्चर को अब हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, किसी भी एक टीथ के टूथ के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें,
तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोगों को इसका कुछ पार्ट नीचे की ओर एम्बेडेड है और कुछ पार्ट बाहर की ओर है। ये अंदर और बाहर की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इस डायग्राम में जो मैंने ड्रॉ किया है, देखो इसमें जो मैंने ड्रॉ किया है इस वाले पार्ट को, ये एक्चुअली जॉ का बोन है, इट इज जॉ बोन। उसके बाद ये जो डार्क लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है, इट इज लिगामेंट। एंड दिस बोन और तब लिगामेंट, और तब ये लिगामेंट जोड़ रहा है इस बोन को किससे, इस टीथ से, टूथ से। तो ये जो इसको ऐड कर रहा है, तो लिगामेंट इसके साथ कनेक्टेड रहता है थ्रू ए थीन लेयर, जिसको हम लोग कहते हैं सीमेंट लेयर। नाम ही दे दिए सीमेंट लेयर। तो नाम से ही इसका काम भी समझ में आ रहा होगा कि इट इज वर्किंग फॉर कनेक्टिंग दिस लिगामेंट विद द टीथ, सो वी आर कॉलिंग इट सीमेंट लेयर। तो यहाँ पर पहले तो ये बात समझे कि ये नीचे कहां पर किसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं कैमरा इधर कर दे रहा हूँ थोड़ा। देखो अब अगर हम लोग इसमें इसके सरफेस के बारे में अगर आते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम टीथ को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो कुछ भी बाहर दिख रहा है दैट इज क्राउन, जो अंदर एम्बेडेड है दैट इज रूट, और जो इसका बीच का पार्ट है जिसको क्राउन और रूट का बिल्कुल ये सरफेस वाला पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं नेक। नाम ही है नेक। तो नेक इज प्रेजेंट एट द गम सरफेस। तो गम के सरफेस वाले रीजन में जो दिख रहा है उतने को ही हम सिर्फ नेक कहेंगे, बहुत माइनर पार्ट होगा ये। और जबकि पूरा जो नीचे एम्बेडेड है उसे हम लोग कह देंगे रूट, और जो ऊपर बाहर में दिख रहा है प्रोजेक्टेड है दैट इज कॉल्ड एज क्राउन। जो सरफेस ऑफ टीथ है, उस सरफेस ऑफ टीथ पर आप देखोगे कि देयर इज ए नॉन सेलुलर लेयर। नाम ही हो गया नॉन सेलुलर, सेल का नहीं बना हुआ है। तो ये क्या है, तो कुछ केमिकल है। तो ये जो यहाँ पे केमिकल लेयर है इसी को हम लोग कहते हैं एनामेल। इस केमिकल लेयर को हम लोग कहेंगे एनामेल। अब इस एनामेल लेयर, इसके नीचे का जो लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज डेंटिन लेयर। इस एनामेल लेयर या एनामेल केमिकल, एनामेल इज नेम ऑफ केमिकल, एंड दिस एनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में पूछा जाए कि हार्डेस्ट कौन है, देन इट इज एनामेल। और प्लांट में अगर पूछा जाए तब कहेंगे स्पोरोपोलिनिन। अब ये जो डेंटिन हम लोग लेयर देख रहे हैं, नाउ इट इज हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। देयर आर 2 important types of cells. The one is called as odontoblast and second is called as the ameloblast. So this dentin layer, it is mainly having this odontoblast, that is the main cell here, and it is forming the dentin layer. The name itself says odontoblast. Odonto term is used for teeth. So teeth forming cells that is present here in dentin layer, but at the same time it is having ameloblast, और ameloblast का काम होता है enamel का secretion करना। तो odontoblast is the main tooth cell, means it is main cell which is forming this tooth। यही इसका सबसे मेन कंपोनेंट है। जैसे हर एक पार्ट में पढ़ोगे, जैसे बोन पढ़ोगे तो ऑस्टियोसाइट,
मान लो आप जब कार्टिलेज पर होगे तो कॉन्ड्रोसाइट, आरबीसी पर होगे तो एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ये सभी टर्म। तो उसी तरह से यहाँ पर हम इसे कहेंगे ओडोंटोब्लास्ट इज द मेन सेल, टूथ सेल, और उसके साथ जो एमेलोब्लास्ट है उसका काम सिर्फ होता है एनामेल का सिक्रीशन करना, एंड दिस एनामेल इज द डेड लेयर। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो सेंट्रल इसका कैविटी है, सेंट्रल पार्ट, ये एक कैविटी है। इस कैविटी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर पल्प कैविटी, और इस कैविटी के अंदर जो चीज भरा हुआ है उसे हम लोग कहते हैं पल्प। ये पूरा जो कैविटी है ये हो गया पल्प कैविटी, और उसके अंदर जो भरा हुआ है वो है पल्प। तो क्या भरा हुआ है? तो इट हैज रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, दोनों तरह का, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये यहाँ पर पाए जाएंगे। At the same time, it is having the nerve supply. It has rich number of nerve fibers. इसके साथ साथ वहां पर फ्लूइड पार्ट भी होगा। तो इन सभी को मिलाकर हम लोग कहते हैं पल्प। जैसे बोन के सेंटर पर देखते हैं बोन मैरो, उसी तरह से टूथ के सेंटर पर हम लोग देखेंगे पल्प, एंड ये जिस कैविटी के अंदर है उसे हम लोग कहेंगे पल्प कैविटी। तो ये स्ट्रक्चर ये हो गया पल्प, स्टेटमेंट में लिखवाऊंगा, और इस कैविटी का नाम हो गया पल्प कैविटी। पहले इतना ड्रॉ कीजिए, फिर मैं स्टेटमेंट पर आ रहा हूं। सब पल्स कैविटी में ब्लड भी प्रेजेंट होता है क्या? हाँ बिल्कुल, ब्लड नहीं रहेगा तो इसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, ये ग्रो कैसे करेगा? टीथ का ग्रोथ भी होता है, डीजनरेशन भी होता है, तो ब्लड वेसल्स रिच सप्लाई होता है, और इसके साथ साथ इसमें नर्व फाइबर का भी रिच सप्लाई होता है। तभी तो सेंसिटिविटी, मान लीजिए कभी एनामेल लेयर जब डिग्रेड करता है तो ये सेंसिटिवनेस इसको कहते हैं। तो कोई भी चीज ठंडा गर्म खाए तो कितना जल्द फीलिंग आता है, इसका मतलब है कि नर्व स्टेटमेंट्स लिखते हैं इसका। फोर्टीन और निकल गया। क्राउन इज आउटर प्रोजेक्टेड पार्ट, रूट इज part embedded in jaw, neck is at the surface of आज भी क्लास करने के बाद आप लोग जरा सा अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जहां पर आप हैं उसमें एक बार लिख दीजिएगा तो कि हाँ आई हैव अटेंडेड क्लास, ठीक है? क्योंकि अब मैं भी ना अब इरिटेट हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है? क्योंकि ये सब क्लास कोई आ रहा है जा रहा है,
तो एक बार हम समझ लें कि कोई किसको क्लास करना है और फाइनल लिस्ट लेकर करें, मुझे कोई परेशानी नहीं है। 2 ही बच्चा हो कि 5 बच्चा हो या 10 बच्चा हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन ये सब इरिटेटिंग एलिमेंट्स जो है ना वो ज्यादा परेशान करते हैं। तो इसीलिए आप लोग मैसेज कर देना, और मैसेज में जिन लोगों ने अटेंड किया है वो आप लिख देना वहां पर ग्रुप में कि आई अटेंडेड माय क्लास, हम लिख देना, ठीक है। अभी आप कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप में है वो व्हाट्सएप में कर दीजिए, जो टेलीग्राम पर है वो टेलीग्राम पर। चलिए हम लोग नेक्स्ट चीज पार्ट देखें। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है एनामेल। एनामेल इज द outermost non-cellular chemical layer. The enamel is the hardest substance present in animals. Next is dentine. मतलब डेंटिन इज सेलुलर लेयर। देखो एनामिल क्या था, नॉन सेलुलर and it is cellular layer. It has 2 types of cells. Forms dentine.